Okay, hello friends, welcome to All Chemist Official. Today we will learn about unit of area of reaction. This is actually a subtopic under the rate of a chemical reaction. In the last video lecture we learned about that what is the rate of a reaction. See, rate of a chemical reaction express that how much changes are there in the concentration of reactant or change in uh, concentration of a product in a unit of time. Okay, and from that we learn about average rate of a reaction, and we know average rate of a reaction always talks about the rate of decrease in concentration of a reactant and rate of increase in concentration of a product. Okay, and average rate of a reactions depend upon the concentration, the change in concentration of a reactant or change in concentration of a product and the time taken in which changes occur. Okay, and we also learned that the square bracket, okay, the R under the square bracket and P product under the square bracket, all these square brackets are not just a mere, you know, are not just a mere bracket, but this square brackets express about that this concentration of a reactant are in molar concentration, and this particular square bracket of a products are in molar concentration. Okay, now we are going to learn about the unit of rate of a reaction, because of course rate and reactants are involved, the concentrations are also involved. Okay, and they are expressed in the molar base, on the molar concentration basis. Okay, now we will learn about the unit of rate of a reaction. Okay, so from equation 4.1 and 4.2 it is clear that unit of a rates are concentration time per sorry, it is clear that unit of a rate are concentration per time. ठीक है, सो रेट का जो यूनिट है वो concentration पर टाइम है, मतलब हर टाइम, ठीक है, concentration, ठीक है, पर एक सेकेंड में जो concentration है वही है रेट का यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, इफ concentration is in mole per liter and time is in second, then the unit will be mole per liter per second. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन के में बेसिस में रहता है, मतलब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहता है. मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है मोल पर लीटर, मतलब 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस पर 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में है. ठीक है, और टाइम जो है वो सेकेंड में है. तो जो रेट ऑफ ए रिएक्शन का यूनिट रहेगा वो मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा. मतलब जो भी सब्सटेंस है, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, ठीक है, उन सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल चेंज होता है पर एक सेकेंड में और एक 1 लीटर में. ठीक है, तो एक सेकेंड में जो 1 लीटर में जो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस है उस 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस में चेंजेस होता है, राइट. और उसी से ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आता है, और यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, अभी ये जो यूनिट जो है रेट ऑफ रिएक्शन का वो चेंज होते रहता है. फॉर एग्जांपल, रेट ऑफ रिएक्शन में यूनिट अलग है, सेकेंड ऑर्डर में यूनिट अलग है, ज़ीरो ऑर्डर में यूनिट अलग है, फिर थर्ड ऑर्डर में यूनिट अलग है. फिर माइकलिस मेंटेन जो है वो काफ़ी बड़े लेवल का कंसेप्ट है जो एमएससी के स्टूडेंट्स लोग पढ़ते हैं. ठीक है, तो उसमें यूनिट अलग है. ठीक है, फिर एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन में जो यूनिट है वो अलग है. तो ठीक है, तो ये जो है अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन में अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन में अलग अलग एसआई यूनिट्स होते हैं. और इसीलिए हमारा ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड होता है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, टाइम और प्रेशर पे.
और मोस्टली हमारा जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड होता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो चेंजेस में चला जाता है या और टाइम, वो टाइम जिस पे ये सब चेंजेस होते हैं। ये सभी जो चेंजेस होते हैं ना उसके लिए तो टाइम लगता ही है, तो टाइम में भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाउएवर इन गैसियस reaction when the concentration of gases is expressed in terms of their partial pressure, then the unit of rate equation will become atom per second। लेकिन अगर गैसियस रिएक्शन का काइनेटिक्स के बारे में हमें स्टडी करना, मतलब केमिकल काइनेटिक्स, हमें गैसियस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना है। ठीक है, और उसमें गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस होता है। ठीक है, गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस होता है पार्शियल प्रेशर में। ठीक है, तो इस रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है वो एक्सप्रेस होगा एटम पर सेकेंड में, एटम पर सेकेंड में। ठीक है, एटम पर सेकेंड में। ठीक है, फिर इट कैन बी सीन फ्रॉम द 4.1 टेबल। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ अ हाइड्रोलिसिस ऑफ बुटाइल फ्लोराइड। ठीक है, ऊपर हम देख सकते हैं it can be seen table 4.1 that the average rate fall from 1.19 10⁻⁴ mole per liter per second to 0.4 10⁻⁴ mole per liter per second। ठीक है, तो एवरेज रेट जो है वो नीचे गिरता है 1.90 10⁻⁴। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड से लेकर 0.4 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो एवरेज रेट जो है वो काफ़ी नीचे नीचे चला जाता है। ठीक है, काफ़ी नीचे चला जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर however average rate cannot be used to predict the rate of a reaction at a particular instant, as it would be constant for the time interval for which it is calculated। लेकिन एवरेज रेट से हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि रिएक्शन का रेट कितना हो सकता है पर्टिकुलर इंस्टेंट में, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा टाइम इंटरवल के लिए जहाँ जिससे कैलकुलेटर होगा। ठीक है, so to express the rate at a particular moment of a time we determine instantaneous rate। तो कभी भी पर्टिकुलर टाइम का पर्टिकुलर मोमेंट का रेट के बारे में एक्सप्रेस करना है तो इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन होता है। मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में हम पढ़ने वाले थे। हमने पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा जो डिपेंड होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एंड द टाइम टेकन इन विच दिस चेंजेस अकर। ठीक है, तो अभी इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, टू एक्सप्रेस रेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ अ टाइम वी डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ अ टाइम में जो रेट एक्सप्रेस होता है, ठीक है, उससे हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। मतलब एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में जो रेट एक्सप्रेस होता है, ठीक है, वो है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, टू एक्सप्रेस रेट, ठीक है, at a particular moment of a time we determine instantaneous rate। to express rate at a particular moment of a time we express instantaneous rate। ठीक है, to express rate at a particular moment of a time we determine the instantaneous rate। to express the rate at a particular moment of time we determine the instantaneous rate। किसी भी रेट को एक्सप्रेस करना टाइम के पर्टिकुलर मोमेंट में जिससे हम इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में डिटरमाइन कर सकते हैं। रेट को एक्सप्रेस करना पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में, ठीक है, और उसके लिए हम इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन करते हैं। तो ठीक है,
तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या है? कोई भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या एक्सप्रेस करता है कि रेट, ठीक है, जो होता है पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब पर्टिकुलर टाइम के मोमेंट में, तो उस पर्टिकुलर टाइम के मोमेंट में जो भी रेट होता है एक्सप्रेस होता है रेट ऑफ ए रिएक्शन को। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन मीन्स रेट एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ अ टाइम, ठीक है। वी डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से हम ये समझ सकते हैं कि टाइम, ठीक है, 1 सेकेंड से भी कम या 0 सेकेंड से भी कम, ठीक है, उस 0 सेकेंड से भी कम में भी रिएक्शन होता है। तो ऐसे रिएक्शन के बारे में हम रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे। तो ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो 0 सेकेंड से भी कम टाइम में भी होता है, ठीक है, तो उसी के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बारे में स्टडी करने के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस हमें डिटरमाइन करना पड़ता है। और डिटरमाइन कैसे करेंगे? इट इज़ ऑब्टेन व्हेन वी कंसिडर एवरेज रेट एट अ स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल से dt, दैट इज़ व्हेन चेंज इन टाइम अप्रोच 0, ठीक है। तो हमें ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मिलेगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमें तभी मिलेगा जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कंसिडर करेंगे स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल पे। जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे कंसिडर करेंगे तो मतलब टाइम में जो चेंजेस होता है, ऐसे टाइम में जो चेंजेस होता है जो 0 पे अप्रोच करता है या 0 सेकेंड से भी कम में अप्रोच करता है, उस स्मॉल टाइम चेंजेस में जो एवरेज रेट ऑफ ए रिएक्शन है उसे हम कंसिडर करेंगे। और मैथमेटिकली, ठीक है, छोटे से जो टाइमिंग में जो चेंजेस होता है उसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ ए रिएक्शन जो है RAV, इसमें क्या है RAV, ठीक है, मानो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। हम जानते हैं कि रेट ऑफ अ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, ठीक है, पर चेंज इन टाइम। देन ये है रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन चेंज इन टाइम, ठीक है। और डेल्टा T इज अप्रोचिंग टू 0, दैट मीन्स इट इज infinite simile, okay, infinite simile small interval of a time, okay. So it is delta T is infinite simile small interval of a time, ठीक है, जो मतलब ऐसा टाइम में भी चेंजेस होता है जो 0 को अप्रोच करता है, जो 0 सेकेंड में रहता है या 0 सेकेंड से भी नीचे रहता है, ठीक है। तो ऐसा जो रिएक्शन जो 0 सेकेंड पे होता है या 0 सेकेंड से भी कम में होता है, ठीक है, ऐसे रिएक्शन का रेट को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये 0 सेकेंड में या 0 सेकेंड से भी कम टाइम में भी रिएक्शन होते हैं। और ऐसे रिएक्शन जो होता है, जो अकर होता है, जो स्टार्ट होता है 0 सेकेंड से भी कम टाइमिंग में, ऐसे रिएक्शन का रेट को हम अगर स्टडी करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और हम बार बार इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ही स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर, ठीक है, यही हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम स्टडी करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में भी, ठीक है, छोटे से टाइम में, ठीक है, ठीक है, रेट ऑफ ए रिएक्शन जो है डिक्रीज होता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज इन टाइम में इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन में भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है जैसे जैसे टाइमिंग में चेंजेस होता है, और प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन
में मतलब पॉजिटिव मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जैसे से टाइम चेंज होता है। ठीक है, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में दोनों में यही फ़र्क है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में भी रिएक्शन का रेट स्टडी होता है, लेकिन 0 सेकेंड के टाइमिंग में वो रिएक्शन होता है और 0 सेकेंड से भी कम टाइमिंग में वो रिएक्शन होता है। तो ऐसे रिएक्शन जो 0 सेकेंड से भी कम रिएक्शन में भी, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट होता है, ऐसे रिएक्शन का रेट को या ऐसे रिएक्शन के स्पीड को स्टडी करने के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है। ठीक है, अभी ये जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, उसमें क्या दिखाया है कि जो हमारा जो है रिएक्टेंट मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन में है, ठीक है, वो डिक्रीज हो रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या है इंस्टेंटेनियस रेट जो है, ठीक है, वो मतलब ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है बुटाइल फ्लोरो का, ठीक है, उसका स्मॉलेस्ट टाइम जो है वो 600 सेकेंड है। तो 600 सेकेंड में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस ये हो रहा है। ठीक है, फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ बुटाइल क्लोराइड It can be determined graphically by drawing a tangent at time t on either of the curve for concentration of R and P versus time t and calculating its slope. In problem 4.1, R rate of a reaction, instantaneous rate of a reaction is 600 seconds, for example, can be calculated by plotting concentration with the as function and tangent can drawn that touch the curve at a t equal to 600 seconds. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं ग्राफ ड्रॉ करके, जिसमें टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है टाइम टी पे। ठीक है, और टी जो है सेकंड के यूनिट में रहते हैं, जिसमें रेट का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के अगेंस्ट होता है। मतलब वाई एक्सिस में रेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, टी में, ठीक है, सेकेंड्स होता है। ठीक है, स्लोप्स को कैलकुलेट किया जाता है। उसमें इंस्टेंटेनियस जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, वो 600 सेकेंड पर होता है। मतलब बुटाइल क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट होता है जो है हमारा टाइम का फंक्शन। ठीक है, हमारा बुटाइल क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्लॉट होता है, ठीक है, एज अ टाइम का फंक्शन। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ होता है और वो टच करता है कर्व को, टेंजेंट ड्रॉ होता है वो टच करता है कर्व को। ठीक है, और उस पे से, ठीक है, और वो जो है कहाँ पे वो टेंजेंट ड्रॉ होता है कर्व पे, टाइम 600 सेकेंड पे। ठीक है, तो 600 सेकेंड पे हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिटरमाइन होता है जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कर्व्स में। ठीक है, और ये कर्व्स दिखाता है कि रेट जहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट जो है 600 सेकेंड में, ठीक है, वो है -0.0165 -0.037 800 -400 सेकेंड मोल एल इनवर्स। तो जो रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन का जो वैल्यू है वो क्या होता है,
5.1 to 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिर टाइम 250 सेकेंड में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन 1.2 to 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। फिर टाइम 350 सेकेंड में रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो 1 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। और T450 सेकेंड में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है 6.4 10⁻⁵ मोल per liter per second. Now consider reactions. ओके हम रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। ओके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है, उसमें मतलब मर्क्यूरी का कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज़ होना टाइम जब चेंज होता है, और क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन में क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होना जैसे टाइम चेंज होता है। और प्रोडक्ट जो है हाइड्रोजन डाइक्लोराइड, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना जैसे टाइम चेंज होता है। दैट इज़ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कोई भी रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस होता है उसका रेट उतना ही सेम रहता है जितना प्रोडक्ट का अपीयरेंस का रेट सेम रहता है। बट इन द फॉलोइंग रिएक्शन 2 moles of HI डिकम्पोज टू प्रोड्यूस 1 mole each of H2 and I2। लेकिन दूसरे रिएक्शन में अलग है, जैसे कि HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड जो 2 मोल का है वो डिकम्पोज होता है 1 mole ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड और 1 mole ऑफ डाइआयोडाइड। ठीक है, फिर फॉर एक्सप्रेस द rate of such a reaction where stoichiometric coefficient of a reactant or product or equal to 1, rate of a disappearance of any of the reactant or the rate of appearance of a product divided by the respective stoichiometric coefficient। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसका रेट एक्सप्रेस करता है जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ठीक है इक्वल नहीं रहता है 1 से, मतलब कोई भी रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस का रेट या फिर कोई भी प्रोडक्ट का अपीयरेंस का रेट जो है वो डिवाइडेड रहता है उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ठीक है, तो ऐसा जो है हाइड्रोजन आयोडाइड का कंजम्पशन का रेट ट्वाइस है हाइड्रोजन या फिर आयोडाइड का फॉर्मेशन का रेट से। ठीक है, तो उसे इक्वल करेंगे तो जो आयोडीन का हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंजेस है वो डिवाइड होगा 2 से। और इस रिएक्शन में भी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है ठीक है इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड जो एक्चुअली रिएक्टेंट है ठीक है वो 2 मोल्स का है, तो वो 2 से डिवाइड होगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है ना, वो ठीक है उतना ही इक्वल रहता है उसका रेट जितना हाइड्रोजन या आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन आयोडीन तो 1 मोल का था तो उसको डिवाइड करेंगे सिर्फ 1 से। ठीक है, फिर सिमिलरली फॉर द रिएक्शन 5 मोल ऑफ अ ब्रोमीन एक्वेसियस देन रिएक्ट विद BrO3 देन रिएक्ट विद 6H प्लस गिव्स 3 moles ऑफ ब्रोमाइड एंड 3 moles ऑफ H2O। ठीक है, तो रेट है ठीक है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है ब्रोमीन का वो कम होता है और डिवाइड होता है 5 से। फिर BrO3 ब्रोमीन ट्राइआयोडाइड का भी कॉन्सेंट्रेशन कम होता है जैसे से टाइम चेंज होता है और डिवाइड होता है 1 मोल से। फिर हाइड्रोजन आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और डिवाइड होता है 6 से। फिर ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है क्योंकि वो प्रोडक्ट है, वो डिवाइड होता है 3 से। और वाटर मॉलिक्यूल का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है और डिवाइड होता है 3 से। फॉर गैसियस रिएक्शन at constant temperature, concentration is directly proportional to partial pressure of a species and hence rate can also be expressed as a rate of a change in partial pressure of a reactor or product। लेकिन अगर गैसियस रिएक्शन का अगर रेट स्टडी करना है, स्पीड स्टडी करना है कांस्टेंट टेम्परेचर में, तो हम गैसियस रिएक्टेशन में जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसको कॉन्सेंट्रेशन टर्म में नहीं लेंगे, तो हम वो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लेंगे। तो उसका जो रिएक्शन में
गैसियस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है हम उसको पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो जितने भी कॉन्सेंट्रेशन सो पार्शियल प्रेशर के यूनिट में हम उसे कंसिडर करेंगे जब कभी भी हम गैसियस रिएक्शन का रेट स्टडी करेंगे तो, ठीक है। जब भी गैसियस रिएक्शन का रेट को स्टडी करेंगे तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है कितना भी कॉन्सेंट्रेशन होने दो, लेकिन हम लोग उसको मोलार कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में नहीं लेंगे, हम उसे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लेंगे, हम उसे पार्शियल प्रेशर की यूनिट में लेंगे, ठीक है। तो ऐसा रेट, ठीक है, जिसमें ऐसा रेट ऑफ ए रिएक्शन ऐसा मतलब गैसियस रिएक्शन का रेट जिसमें जो रेट जो रहता है उसमें रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर का चेंजेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। मतलब हम कभी भी गैसियस रिएक्शन का रेट के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें हम गैसियस रिएक्शन में जो भी प्रेशर, ठीक है, जो भी प्रेशर है या जो भी मतलब रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसका पार्शियल प्रेशर में कितना चेंजेस हो रहा है वही हम स्टडी करेंगे। जब भी हम गैसियस रिएक्शन का रेट का स्टडी करेंगे तो उस गैसियस रिएक्टेंट में जितने भी रिएक्टेंट है, जितने भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उस रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो स्टडी करेंगे, या फिर उस प्रोडक्ट का जो पार्शियल प्रेशर मतलब उस प्रोडक्ट का जो पार्शियल प्रेशर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है, रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन में। वी विल स्टडी दिस ऑन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। मतलब कौन कौन से फैक्टर जो है रेट ऑफ ए रिएक्शन पे असर करता है, ठीक है। हम जानते हैं फैक्टर जैसे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ये सब फैक्टर और कैटलिस्ट, ये सब फैक्टर अफेक्ट करता है रेट ऑफ ए रिएक्शन। वी विल लर्न ऑन नेक्स्ट वीडियो।